भिक्खुनी संघ स्थापना दिन की फिर से एक बार आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और इसके बाद भी मंगलमय सदिच्छाएं देती हूँ। इसके साथ हम इस सत्र को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं और इसके बाद इस सत्र के अध्यक्षा बनते सुनीति अब माइक संभालेंगी। इनको मैं अनुरोध करती हूँ कि इस सत्र की शुरुआत करें। एक भिक्खुनी संघ किस तरह से अपना काम करेगा, हाउ द संघ विल वर्क, हाउ इट शुड वर्क, तो ये विषय हमने आज के लिए लिया है। वो है भिक्खुनी संघ की कार्य प्रणाली और व्यवस्थापन। और इसके लिए हमने वक्ताओं के रूप में स्पीकर्स वी हैव इनवाइटेड मिस्टर शशिधरन फ्रॉम केरला, हु इज प्रोफेसर at Kaladi University. He would be the speaker. The second speaker would be Mr. Chandrasekhar, Dr. Chandrasekhar from Kolar, Karnataka. He is running a educational society where school, colleges of nursing, IT and everything which is under the education system, how it runs, institution we can say. So he is running that. यानी हमारे कोलार के जो व्यक्ति है आए हैं स्पीकर वक्ता डॉक्टर चंद्रशेखर, ये स्कूल कॉलेज चलाते हैं, ये इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन है वहाँ पे और एजुकेशन के लिए उनके बहुत अच्छे विचार है और इसलिए मैंने कर्नाटक से उनको बुलाया है। भिक्खुनियाँ भी यहाँ पर अलग अलग स्टेट से हैं, जैसे भिक्खुनी बुद्धम्मा ये कर्नाटक से आई हैं, जो कर्नाटक में अपना भिक्खुनी संघ के कार्य कर रही है, वहाँ पर बहुत प्रभावी ढंग से कर रही है, लेकिन और कुछ हमको प्लान करना है इसलिए हमने उनको बुलाया है। दूसरे भिक्खुनी सामावती है जो तेलंगाना के हैदराबाद में वहाँ रहते हैं और वहाँ पर उनका भी कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है। तीसरे हैं हमारे भिक्खुनी निम्मल मेहता जो पूरी तरह से ट्रेनिंग लेने के लिए नागपुर में 1.5 साल से रुके हुए हैं, क्योंकि आगे चलकर उनको उत्तर प्रदेश में भिक्खुनी संघ का बहुत अच्छे से कार्य करना है, संघ निर्माण के लिए कार्य करना है। भिक्खुनियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, सामनेरिया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कैसे संघ में मिलकर काम कर सकते हैं इसलिए उनको बुलाया गया है। और एक सामनेरी है धम्म विशाखा और धम्म विशाखा यूपी से सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और वो भी अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर चंद्रशेखर टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, गिव योर वर्ड्स हियर ओनली and everyone has to be like take care of the timing. It should be 10 minutes. Okay? Yeah. The opportunity to serve in the government by the Bhikkhunis. They have to announce the reservations to the Bhikkhunis especially to serve in the government services, especially in the education field, because as I know, in Bhikkhunis there are double graduates, triple graduates, engineers, even doctors. This is what I have studied about the Bhikkhunis. Why not they give opportunities to serve in the government services, especially in the education field? Let them give opportunity to serve as a lecturers, principals, and other places. Even I am having nursing colleges. I am requesting Buddhamma to give few lecturers to my college. Even I am having polytechnic. I am requesting Buddhamma to directly appoint some of the engineers to serve in my polytechnic, ITI, like that. Even nursing colleges, I am having degree college, BSc, MSc, like that.
pharmacy college I am having. I am giving opportunities to the bhikkhunis, whoever having the eligible qualification. I am giving opportunities in my college to serve bhikkhunis. This is what my intention. I think my English language might have understand my bhikkhunis. Please. Like that. This is even not only in the private agencies, even companies, private companies. Because you know very well, one more extra thing here I want to mention. Because we are all depending on the Constitution. The Constitution is giving very much protection to the not only Ambedkarism, not only Buddhism, not only Ambedkarism. It is giving protection to the bhikkhunis also. This is purely from the point of view of a researcher that I try to articulate some of my understanding regarding this. Other day, I was telling that the relevance of Bhikkhuni Sangha should be discussed or understood in the context of the wider question of the relevance of Buddhism itself. So what should be the relevance, what should be the future of Buddhism? What should be the nature of Buddhism in the contemporary times or in future in India as well as in other places? This is my major concern. In the history or in the textbooks, we hear many great things about Buddhism, Buddhist philosophy, Buddhist history, Buddhist movement and all. But what actually we are able to see in India, India being the country of Buddhism, no. What is the status of Buddhism in India? What way the young generation could see the existence of Buddhism in India? As a student, as a teacher, I learned many great things, many revolutionary ideas about Buddhism from the books. Buddhism as a revolutionary philosophy, as a revolutionary social movement and all. No, this is. But is it possible to see something like in the present situation? Is Buddhism is something anything like a revolutionary idea at present in anywhere in India or world? This is my concern. As a researcher, no, I have been keeping this question in my mind, no, because I am very much fascinated by the Buddhist philosophy. So as a student of philosophy, I was very much interested to go into the very minute details of Buddhist ideas. And when I became a teacher, I was also trying to teach our students the revolutionary nature of Buddhist philosophy. But when I see its application in life or its possibility of social significance or its when we look to such things, no, this is social relevance or its social presence, no, it is very disappointing thing. No, we can't see any speaker or any figure, any personality of high nature, no, this is high stature in India from the background of Buddhism. We can't see any teacher or a social reformer who is giving or a public personality figure, opinion maker or writer
or any journalist who speaks from the point of Buddhism, or who respond to the contemporary situations in India from the perspective of Buddhism. So this is the major question for me. No, this is why we are not able to see any response from the Buddhist angle towards the rotten social situation in India, prevailing in India. We have so much of discriminations, violence in every sphere of social life. Who are the Buddhists? Where are Buddhists? Why they don't respond to, they are not coming to respond to such rotten situations? Why Buddhists are not able to, if at all there is Buddhists, no, why Buddhists are not able to react to such things? No. Then what is the purpose of teaching people, students, through books, that Buddhism is such a great revolutionary thinking, revolutionary philosophy, or it is a scientific religion, as Ambedkar said? So this is a major question, whether Buddhism is a religion or a social philosophy or a spirituality, like that. No, it is being debated by scholars. So in this regard, I am trying to look at the kind of the program that is taking place now in Nagpur, the land of revival of Buddhism in India, modern Buddhism, revival of modern Buddhism in India, inaugurated by or started by Baba Saheb Ambedkar. ये मुद्दा उठता है कि भिखुड़ियों को कैसे अपने धर्म, भिखुड़ी जो हैं अपने धर्म को आगे कैसे बढ़ाएं। हम धर्म को जब ही आगे बढ़ा सकती हूँ, हम अपनी चित्त की चेतना को निर्मल रखेंगे, एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हम एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए जब मौका मिलता है तो बहुत ज़्यादा खींच देती हैं हमारी धर्मगुरु। यहाँ पर बहुत सारी हमारी धर्मगुरु बैठी हैं और श्रावण भी बैठी हैं। इनके लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, अपनी श्रावण जो भंते जी बैठी हैं यहाँ, उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से थी, मैं बहुत अच्छी नहीं थी, मैं भी एक बहुत खूंखार महिला थी, लेकिन इस धम्म में आकर के जिस दिन 2016 में 5 फरवरी को हमारी जब परविज्जा हुई यहाँ लुम्बिनी में, तो वहाँ पे कम से कम सैकड़ों भिक्षु थे। और पहली बार जब हम उन भिक्षुओं के बीच में, भिक्षुड़ियों के बीच में गई, तो एकदम हमारा मन बिल्कुल उमंग हो गया कि नहीं नहीं, मेरे को भी यही काम करना है। तो मेरी जो बिजनेस चल रही थी तो उसमें हमारा रुचि बहुत कम पड़ गया। आज जाए तो कल नहीं, कल जाए तो परसों नहीं, उसमें मैं बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। और हम दिन रात बस यही किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। तो बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहब ने जो भविष्यत बाबा साहब डॉक्टर बी आर भीमराव की लिखी हुई किताब बुद्ध और उनका धम्म, जब मैं पूरी किताब पढ़ी तो एकदम मेरे को इतना मतलब रोष आया कि मैं क्या करूं, मेरे लोगों का, हमारा लोगों का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, तो ये अपमान के बाहर मैं कैसे निकलूं। सोचते 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 मैं बस यही मेरे दिमाग में आया कि मैं जो ये ठगाई कर रही हूँ बैठे बैठे रोड पे, एक इंजेक्शन लगा करके, और मैंने 10 रुपये का इंजेक्शन लगा करके, और मैंने 100 रुपया जो हम महिला से ऐंठ लेते हैं, ये मैंने बड़ा गलत करती हूँ।
बहुत गलत, ये तो झूठ है। एक बार मैं कहती हूँ मूसा वादा बेरबड़ी सिक्खा पदम समादयामी, और दूसरी बार मैं क्या करती हूँ, झूठ बोल करके मैं उनसे पैसा ले लेती हूँ। ये भी धीरे धीरे मेरा छूटता चला गया। उसके बाद में मैं एक दिन अपनी मार्केट में कहने लगी कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन ये धम्म की तरफ लग रहा है। बिच्छू और बिच्छड़ियों को देख करके हमारा इतना मन खुश हो जाता है कि मैं भी मुंडा उंडा घोटा करके बस बन जाऊँ। मेरे मार्केट ने कहा तेरे डीएम तेरे आगे फेल है, तू ये काम कर ही नहीं पाएगी। मैंने कहा समय आएगा मैं बताऊँगा। समय आया और काम हो गया, समय आया और काम हो गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज भी मैं उस क्लिनिक के अंदर नहीं गई हूँ और लाखों रुपए का सामान हमारा उसी में पड़ा सब सड़ रहा है, क्योंकि मैं और मेरा शब्द मैंने छोड़ दिया। ये मेरा है, ना मैं हूँ और ना मेरा है, दुनिया में कुछ नहीं। मैं और मेरा शब्द बड़ा खराब लगता है। ये शरीर मेरा नहीं है और मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस दुनिया में हमारा सम्मान और सम्मानता, अगर अच्छा करेंगे तो हमारा सम्मान होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारा अपमान होगा। ठीक है, तो हम अपमान के जगह पे ना पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बिच्छुड़ी संघ बैठा है तो हम सबसे गलती हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। एक बोलबाला की गलती हो जाती है, एक मतलब चीवर पहनने में गलती हो जाती है, एक बातचीत में गलती हो जाती है, लेकिन उन गलतियों को हम जान नहीं पाती हूँ। हम कब तक उन गलतियों को नहीं जान पाऊंगी, जब तक ये भगवान बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध की खोई हुई विद्या 2500 वर्ष बाद अपने भारत में ये भगवान बुद्ध की विद्या वापस आई, और इस विद्या को सभी लोग अपनाइए। 2 दिन से एक आदमी बोला वो पत्थर को शिल्पी कर को रहती है कर को। यस, हमारा बिकुनी गुरुजी सुनीति बंदे जी, विजय मैत्री बंदी जी, सुमेधा बंदी जी मुझे शिविर दिया। देने का टाइम को मुझे पत्थर था। मैं कर्नाटक से इधर नागपुर का आने का टाइम को मैं पत्थर था, कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे शिल्पी अच्छा स्टैचू बना कर दिया, मार को कैसा मारा, मुझे शिविर दिया। उत्तराखंड, उत्तरकाशी, चाइना बॉर्डर, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, सब जगह बुला लग गया। उधर ऐसा लोगों को साथ प्रवचन करने के लिए कैसा करना कर को मेरा साथ बैठ को डिक्शनरी ले ले को, डिक्शनरी में क्या है वो पाली में, तमिल में क्या वर्ड्स है, पाली में, कन्नड़ा में क्या वर्ड्स है वो बताना कर को बोल को, नमो दस का क्या मीनिंग है कर को मुझे बेटा को बताया। बाद में त्रिशरणम पंचशीला उसको क्या मीनिंग है कर को हमको बताया। बताने का बाद ये लोगों को साथ बैठने के टाइम को मुझे बोला बताओ लोगों को ये बताओ करके बोला। मुझे याद आती है अदिन्न दाना वेरमणि सिका पदंग समाध्या में सबका साथ गालियाँ दिया, नहीं ऐसा नहीं, फिर भी बोलो ऐसा मार को मुझे ट्रेनिंग दिया बंदे जी। फिर वो बोलती हूँ बंदे जी, वो देने का बाद मुझे जाओ तुम्हारा साउथ इंडिया जाओ, तुझे सब भाषा आती है, तू इधर नहीं रहना, उधर दम्मा देना, तू जाओ करके बोला। मैं जाने के टाइम को रोया, मैं नहीं जाता हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, कर्नाटक में कोई भी मालूम नहीं है, मुझे कहाँ विहार है मालूम नहीं है, मैं कहाँ जाको कहाँ बैठना करको मैं रोया। ये बोला नहीं तू जाओ, 3 महीना तक दोनों काम मिलती है उधर जाको ये दम्मा का काम करो, नहीं लोग नहीं मिला तो वापस नागपुर आओ करको बोल को मुझे भेजा। उधर जाने का बाद मैं कुछ का बात है, मैं कहाँ से आया, मेरा नाम क्या है वो बताना, उसमें संघ से कैसा क्या क्या काम करना करको हमको
ट्रेनिंग दिया, उसमें ज़्यादा पावरफुल भिक्खुनीस लोग हम लोग हैं, पावरफुल देन द MLA, MP, ministers. We want to make secure our constituency. We want to secure our constituency because nowadays the constitution is going on absconding from Delhi level, all the things. So I don't want to go for that. Then I went there. I got a chance from the Dr. Surender. I want to stay in a pavitra place, Baba Saheb Ambedkar का धम्म भूमि में, बैंगलोर में बहुत बड़ा धम्म भूमि है। 5 एकड़ जमीन दान दिया मैसूर महाराजा। वो 5 एकड़ जमीन में बहुत बड़ा बसवलिंगप्पा विद आवर अभी चेयरमैन चंद्रशेखर साथ में था, HK मिनिस्टर रंगनाथ का साथ मिलको उधर खुद का पैसा में बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनाया। उधर 1500 बच्चा लोग पढ़ने के स्कूल बनाया, भिक्खुनी लोगों को ये शेल्टर बनाया, मेडिटेशन सेंटर, सेमिनरी सेंटर। बाबा साहेब अम्बेडकर टाइम्स ऑफ इंडिया में 1954 में वॉल्यूम 37 में बहुत अच्छा से दे डाल को है। ये सेंटर, ये लैंड, ये ज़मीन पूरा दुनिया में बुद्धिस्ट होने के लिए ये तैयार करना कर को टाइम्स ऑफ इंडिया में दे डाल को है। मैं आप सबको देता हूँ, वो पेज हमारा पास है, वो वॉल्यूम 37 में भी दे डाल को है बहुत अच्छा से, उसमें भी पढ़ा मैं। फिर हम जाको उधर चंद्रशेखर साहब बोला भिक्खुनी बुद्धम्मा कर को बोले तो कर्नाटक में थोड़ा लोगों को पसंद नहीं है कर, यस पसंद नहीं है। क्यों करके बोले तो मैं हीमयाना महायाना फॉलो नहीं करने वाला, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नवजाना बुद्धि से फॉलो करने वाला। बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धा धम्मा में क्या बोल को है वो फॉलो करने वाला हम लोग। मैं स्ट्रांग से बोलती हूँ भिक्खु लोगों को, नहीं ऐसा नहीं बोलना, नहीं ऐसा बोलती हूँ। भाई पंचशीला में क्या है, पानादिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, भिक्खु लोग बोलेगा प्राणी अत्याचार नहीं करना। हमारा भिक्खु ने हमको बताया, हम लोग डेली प्राणी अत्याचार नहीं बताती है, ह्यूमन का अत्याचार बनाती है, वो दुश्मन बनाती है, एंग्री बनाती है, सब उसमें वो सब निकलना करके हमको बताया है। वो सेकेंड अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, चोरी नहीं करना करके बोला। हम लोग चोरी नहीं है, हमारा थिंग्स दूसरा लोगों का थिंग्स विदाउट देयर परमिशन इफ यू आर टेकिंग दैट इज बिकम द वेरी हार्ड इन द सोसाइटी, ऐसा बोला। यदि बाबा ना होते तो बुद्ध हमें नहीं मिलता था, बाबा ना होते तो बुद्ध नहीं मिलता था। ये बाबा साहब ने हमको यही नागपुर दीक्षा भूमि में ऐसा कहते हैं 5 लाख 10 लाख या 7 लाख लोगों को दीक्षा दी, खुद दीक्षा लेके हमको दीक्षा दी। यदि हमारे ऊपर अगर आज चिवर है तो बाबा साहब की वजह से है। क्यों यहाँ पर 3 बार धम्म यहाँ पर जागृत हो गया है। पहली बार बुद्धा ने फाइट करे ये सभी जातिवाद के ऊपर, वो जो धम्म ये हमको नीच ऊंच देखते थे उसके लिए बुद्धा ने शांति से ये धम्म का विजय करके बताया। उसके बाद में सम्राट अशोका ने उससे ज़्यादा और भी बढ़ा दिया। और आगे चल के देखो, बुद्ध तो राजा के लड़के थे, सम्राट अशोका तो राजा था, फिर भी बाबा साहब ये तो गरीब थे, लेकिन उन्होंने ऐसा दीप जलाया यहाँ नागपुर में, ऐसा खंबा यहाँ छोड़ के गए कि वो खंबे को कोई भी हिला नहीं सकता। ये इसको बोलते दीक्षा भूमि। यहाँ से हमारा जीवन पुनर्जन्म हो गए सो है। तो हम लोग धम्म कैसा आगे बढ़ाना है, ये जो धम्म बढ़ाने के लिए सब में करुणा होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए। अगर हम धम्म बढ़ाना चाहिए बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परिवार से जो हमारे बच्चे हैं
वो बच्चों को हम लोग ऐसे कार्यक्रम में लाना है और उनको 10 दिन का जो समय मिलता माता पिताओं को, वो समय ऐसा भिक्षुनियों में आके रहना चाहिए और उसका फ़ायदा हम उठाना चाहिए। अगर हमारे को और ज़्यादा धम्म बढ़ाना है तो हमारा तो जीवन खत्म हो गया, रहे सो 4 दिन रहे, लेकिन हमारा जीवन अच्छा बनने के लिए हमारे बच्चों को हम 10 दिन देना चाहिए कि उनको सामने बना के ये शिक्षण लेना है और धम्म को बढ़ाना है। जब तक हमारे घर से हमारे लड़कियां हमारे लड़के जब तक 10 दिन यहाँ सामने होके नहीं रहेंगे तब तक धम्म थोड़ा धीरे से चलेगा। लेकिन धम्म बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि मैं ऐसा सोचती, जब मैं आंध्रा में थी, अंधेरे में थी, जैसा धम्म के बारे में मुझे पता चला तो ये आंध्र प्रदेश या सिकंदराबाद या जो भी आंध्र प्रदेश है उसमें खाली केवल मैं अकेली भिक्षुनी हूँ। अगर ऐसा कई सालों के बाद में क्यों नहीं होता, लेकिन एक तो भिक्षुनी हो गई है। तो ऐसे इसी तरह थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रचार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब मैं यहाँ नागपुर में आई तो पंडित सुनीति जी ने प्रशिक्षण देते थे, जैसे बाल शिविर, उपासक शिविर, सामाजिक कार्यकर्ताओं को शिविर, श्रामनेरी शिविर। उन शिविरों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मेरी कोशिश भी अब यही है यूपी की ओर कि सबसे पहले उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, चाहे वो पढ़े लिखे हुए हमारी बिकुनी बहन है कि नहीं है। और जो वहाँ के लोग हैं उनको भी मैं चाहूँगी कि वो भी प्रशिक्षण की, पहले तो प्रेरित करूँगी उनको कि प्रशिक्षण हमें लेना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण से हम धम्म जानेंगे। जब हम धम्म ही नहीं जानेंगे तो हम बुद्ध को और बाबा साहब को कैसे अच्छे से जानेंगे। केवल एक यही है कि औरों की तरह माला चढ़ाओ, मोमबत्ती जलाओ, ये जलाओ, हाथ जोड़ो और हो गया। जैसे चलते चलते सड़क पर भी देखते हैं कि लोग मंदिर कहीं आता है, माथा ऐसे टेकते हैं और उनका काम हो गया। यहाँ धम्म में ऐसा नहीं है। तो पहले यही सिखाना है कि जो बुद्ध तथागत का धम्म है वो एक शिक्षा सिस्टम है। तो उनको शिक्षा की ओर जोड़ना है, प्रेरित करना है, फिर प्रशिक्षण दिलवाना है। इसके लिए हम गांव-गांव जा कर के, यानी कि मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी, ज़मीनी स्तर पर गांव-गांव जा कर के हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और उनसे कहेंगे कि अपने यहाँ छोटे छोटे ही सही, 10-20 लोगों का ही सही, लेकिन एक ट्रेनिंग सेंटर बनवाएं ताकि यहाँ आ कर के आप धम्म सीख सकें। दूसरा, जो मेरी ये भिकुनियाँ हैं यूपी से जो आई हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगी कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, सीखने के लिए बहुत है और समय बहुत कम है। तो वो भी अधिक से अधिक सीखने के लिए मेरे साथ वो तैयार हैं, तो मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलेगा, सीखने के लिए आगे बढ़ेगा, मैं उनका आखिर तक साथ दूंगी। अब मैं मुझे लगता है कि डॉक्टर चंद्रशेखर ने तभी जो बात की थी, मैं उनके ऊपर बोलना चाहूँगी कि उनका एक सपोर्ट, जब भिकुनी व्यवस्थापन की बात आती है, कार्य प्रणाली की बात आती है, तो डॉक्टर चंद्रशेखर की तरफ से मैंने बता ही दिया पहले कि हमको ऑफ़र है कि वहाँ पे भिकुनी ट्रेनिंग सेंटर, अभी बैठे बैठे तभी नहीं बोले वो, लेकिन अभी बैठे बैठे मुझे कहा कि भिकुनी सेंटर का निर्माण हम कोलार में करेंगे, कर्नाटक कोलार में, कोलार KGF में, कोलार गोल्डफील्ड, ये KGF जो है जहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर गए थे, वो इसलिए वहाँ पे हमें बहुत उपासक उपासिकाएं बाबा साहब को मानने वाले मिलते हैं जो बुद्धिज़्म की तरफ आकर्षित हुए हैं। बहुत बड़ा विहार भी वहाँ पर है और वहाँ पे भिकुनी ट्रेनिंग सेंटर की बात हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने कहा है कि जल्द ही वो उसका निर्माण करना चाहते हैं। और अगर ऐसा रहा तो हमारे जो प्रशिक्षण की बात है, वो जो सपना है कि हम लोग अच्छे प्रशिक्षित होकर अच्छे भिकुनी बनकर बाहर निकले, जो सामने रिया है, तो ये बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। दूसरा बात एक क्लियर करना चाहती हूँ कि अपने शशिधरन जी जो बोल कर गए हैं,
उनमें मैं एक ही बात को थोड़ा सा क्रॉस करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि भारत में जो बुद्धिज़्म में हिंदुत्व मिक्स हो गया है, इसके जिम्मेदार महायानी है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कहना पड़ रहा है कि कैसे महायानी जिंदा है जब महायानी कार्य ही यहाँ नहीं कर रहे हैं। भारत में महायानी लोगों का कार्य नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो भिक्खु संघ है, जो भिक्खुनी संघ है, ये महायानी है ही नहीं। ये तो सब थेरवाद वाले हैं, सब हीनयान ही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि महायानियों के वजह से यहाँ पे बुद्धिज्म में हिंदुत्व मिक्स हुआ है? जो भी अंधश्रद्धा भिक्खु या भिक्खुनी संघ के माध्यम से चली आई है, ये जो भी है, मैं किसी को ऐसा दोष नहीं देना चाहूँगी, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है उसमें जिस तरह से प्रचार प्रसार भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ कर रहा है, ये फर्क नहीं कर पाए बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में। और जो दैवीकरण हो चुका है बुद्धिज्म का, ये हीनयान के ही माध्यम से हुआ है। अगर महायानी होते तो यहाँ पे भिक्खुनी संघ के साथ में भिक्खु संघ भी बैठा होता। यहाँ पे भिक्खु संघ इसलिए नहीं बैठा है क्योंकि वो थेरवाद और हीनयान भिक्खु संघ है। ये जो भिक्खुनी संघ का विरोध करता है, भिक्खुनी संघ को सपोर्ट नहीं करता है, ये थेरवाद और हीनयान जो कहते हैं उसकी वजह से है। तो हिंदुत्ववाद में भेदभाव है, महायानी भेदभाव नहीं करते। आपको महायानी कंट्रीज में आप देखोगे, जैसे चाइना है, ताइवान है, जापान है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ये सारे कंट्रीज में महायानी बुद्धिज्म है और वहाँ पे भिक्खुनियों की संख्या सैकड़ों से ज़्यादा है। उनके इंस्टीट्यूशंस है, उनके प्रशिक्षण केंद्र है। तो महायानी भिक्खुनियों को सामने ला रही है, स्त्रियों को सामने ला रही है और बुद्धिज्म का प्रचार भिक्खुनी संघ के माध्यम से कर रही है। जो थेरवादा कंट्रीज है, जो हीनयान को मानते हैं, जैसे श्रीलंका, भारत, कंबोडिया, बर्मा, थाईलैंड, ये कंट्रीज में भिक्खुनियों को ये कलर का चीवर पहनने के लिए भी अनुमति नहीं मिल रही है। यहाँ पे जितने भी भिक्खुनियाँ हैं, मैं सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोल नहीं पाई। सबसे पहले तो मुझे स्वागत करना था। हमारे भिक्खुनियाँ आई हैं, महाथेरी हैं, जिन्होंने 1998 में चीवर लिया था। कुछ कारणवश वो 2 दिन यहाँ नहीं आ पाई थी। भिक्खुनी धम्मदर्शना महाथेरी और भिक्खुनी धम्मशीला महाथेरी यहाँ उपस्थित है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बड़ी भिक्खुनियाँ यहाँ पर है। और ये सभी भिक्खुनियों ने 98 में कितना संघर्ष, 98 तक कितना संघर्ष किया था उपसंपदा लेने के लिए, ये महायानियों की वजह से नहीं था, तो ये थेरवादियों की वजह से था। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं अपने गेस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। इसका विषय है भिक्खुनी संघ एवं उपासक उपासिका संघ का समन्वय। धम्म का हमें प्रचार करना है तो कोई एक इसका प्रचार नहीं कर सकता ना, एक अकेला नहीं कर सकेगा। भिक्खु संघ नहीं कर सकेगा, या तो फिर भिक्खुनी संघ नहीं कर सकेंगे, या फिर उपासिका उपासक ये अलग अलग नहीं कर सकते। तो इनमें अगर कोऑर्डिनेशन हो, एक छत के नीचे, वन अम्ब्रेला के नीचे ये सब अगर आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे धम्म का चक्र है वो जो ज़्यादा गति से वो चल सकेगा, गतिमान होगा। तो मुझे लगता है कि हमने क्या करना चाहिए। अगर मैं उपासक उपासिका हूँ तो मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए कि मुझे क्या करने से हमारा धम्म यानी आगे बढ़ सकेगा, फैल सकेगा, लोगों तक पहुँचेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपका मत व्यक्त करना है। बहुत सारी इसमें समस्याएं भी है। समस्या है उपासक को है, उपासिकाओं को है, भिक्खुनियों को है, सभी के सामने समस्याएं हैं। लेकिन इस समस्याओं पर हमें हल भी ढूंढना है ना। बुद्ध के काल में इतना इजी तो नहीं था ना, जब भी समस्याएं थी, और समस्याओं पर हल बुद्ध ने निकाला था। ज्योतिराव फुले के सामने सामाजिक परिस्थिति इतनी इजी नहीं थी, उन्होंने भी हल ढूंढा। बाबा साहब के सामने भी ऑल इज वेल ऐसे नहीं था,
उन्होंने भी हल ढूंढा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे सामने आज जो प्रश्न है, आज जो समस्याएं कल से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर भी हम बात करेंगे और उस पर सोल्यूशन क्या है तो वह भी हमें यानी वो भी ढूंढना है। मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, या हमें हमारा धम्म गतिमान करने के लिए, धम्म का चक्का गतिमान करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, इस पे आपको बोलना है। जो भिक्खु है, भिक्खुगण है, सामने जब आते हैं तो उनको हम वंदामी बनते हैं ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब भिक्खुनी सामने आती है तो उसको कभी कभी ऐसा समाज में देखा जाता है कि वंदामी माताजी ऐसा कहा जाता है। तो ये कहाँ तक योग्य है, और इसमें एक असमानता दिखती है भिक्खु और भिक्खुनी में। तो एक मेरा सवाल है। दूसरा सवाल है कि भिक्खुनियों के लिए पातिमोक्ष का नियम जो है वो 311 है और भिक्खुओं के लिए 227 है। ये होने के बावजूद भी जब अगर इतने विनय का 311 विनय का अगर भिक्खुनी पालन करती है तो ये तो भिक्खुओं से भी अग्रस्थानी होना चाहिए, फिर समानता क्यों नहीं है? तीसरा एक सवाल है कि महाप्रजापति गौतमी के टाइम जब दीक्षा दी गई उस टाइम भी तथागत ने उसका विरोध किया था, और बाद में अट्टगुरु धम्म लेने के बाद में एक व्यवहारिक तौर पे वो लिखा गया। लेकिन हर वक्त ऐसा कहा जाता है कि भिक्षुनी और भिक्खुओं में एक असमानता दिखाई जाती है, पुरुष स्त्री असमानता। तो ये बड़े बड़े बहुत सारे विद्वान लोग भी पूछते हैं और ये संभ्रम पैदा होता है। तो मुझे ऐसा लगता कि इसमें भिक्खुनियों और भिक्षुओं में कोई ऐसी असमानता नहीं होना चाहिए, बराबर का दर्जा होना चाहिए। कि स्त्रियों के लिए क्या मिशन होना चाहिए, सामाजिक है और कुछ व्यवस्था में है अभियान, लेकिन धम्म के लिए जैसे भिक्षुणी बनना है तो स्त्री के लिए क्या सिस्टम बनी है? कहीं भी एक भी ऐसा एक सेंटर नहीं दिख रहा कि वहाँ लड़कियां भी बहुत कुछ लेना चाहती है, जहाँ की धम्म का प्रशिक्षण मिले तो हम कहाँ जाए। इनफैक्ट मेरी बेटी ही मुझे खुद बोलती है, कहाँ अच्छा इंस्टीट्यूट साइंटिफिक रिसर्च पे हो, वहाँ जाके मैं सीख पाऊँ, तो नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, उतना ऊपर का तो हम फिर उंगली दिखाते हैं फॉरेन के तरफ, थाईलैंड में मिलेगा या कहीं बुद्धिस्ट कंट्री में जाके हम ले श्रीलंका में मिलेगा क्या? तो ऐसा होता है। तो ये सोच है, मैं खुद भी इनकेस मेरा कुछ बताना सही लगे तो मैं लीड ले सकती हूँ इसमें। हम भिक्षुणी का मतलब भिक्षुणी किस लिए ज़रूरी है, मैं बहुत नज़दीक से चिंतन करती हूँ। हम सभी प्रोग्राम में घर में परित्राण करते हैं, धम्मदेशना का प्रोग्राम आयोजन करते हैं, विहार में करते हैं, भिक्षु को हम बुलाते हैं और वहाँ प्रतिनिधित्व भिक्षु करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मेल या फीमेल है तो, लेकिन समस्या है स्त्री की भी बहुत सारी है और आज के आधुनिक युग में बहुत सारे उभर आई है कि वो लड़की अभी समझ नहीं पा रही है कि क्या करे, फ्रस्ट्रेशन में जा रही है। तो एक्शन एंड रिएक्शन में वो जीवन को समझ नहीं पा रही है। लेडीज़ की ऐसी समस्याएं है कि भिक्षु आते हैं तो हम एक दायरे तक उनको रख के ही अपनी समस्याएं या शब्द या सेंटेंस करके हम बता पाते हैं। जब लेडी भिक्षु रहेंगे हमारे चूल्हे चटाके तक जा सकती है। धम्म का बोध तो हमने वहाँ से होना चाहिए ना। हम खाना पकाते हैं वहाँ से शील या विनय शुरू होता है, तो हम उनको पास वहाँ लेडीज़ का तंत्र चलता है तो वहाँ तक धम्म हमारा पहुँचे। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं। जो जिस दिन अपना भिक्खुनी का प्रोग्राम था उस दिन मेरे को सुनाई आया है कि भिक्खुन को नहीं बुलाई यहाँ पे। ये क्या असमानता नहीं हुई क्या?
मेरे को ये सब सुनने में आया करके मैं बता रही, क्योंकि सभी इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। और अभी तक अपन भिक्खुनियों को ज़्यादा घर में नहीं बुलाते, भिक्खुन को ही ज़्यादा बुलाते हैं। तो ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी, क्यों नहीं बुलाते, क्यों। और एक मेरा ये सवाल है कि विहार भिक्खु और भिक्खुनी के लिए होता है, लेकिन जो जेंट्स लोग रहते हैं विहार कमेटी के, वो भिक्खु को भिक्खुनियों को अलाउ नहीं करते। हम लोग भी झगड़ते हैं उनसे, क्यों हम भी कभी भविष्य में भिक्खुनी बन जाएंगे तो हमारे लिए भी तो छत नहीं रहेगा। तो ये मेरी डिमांड है, ये मेरा सवाल है, तो इसका मेरे को सॉल्यूशन बताइए। क्योंकि मेरे को बोला गया उसी दिन कि भिक्खुन को यहाँ पे नहीं बुलाया है, तो भिक्खुनियाँ असमानता नहीं कर रहे क्या, तो क्यों हमको नहीं बुलाया। तो मैं टीवी माध्यम चैनल से बता रही हूँ कि ये ऐसा क्यों हो गया। तथागत बुद्ध ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है कि जिनकी भाषा को, जिनके वाणी को एक भाषा का संज्ञा मिली, वो भाषा है पाली भाषा। और इस देश में जो भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता मिली है, वह अभी पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 67 में एक भाषा है सिंधी भाषा, बाद में 92 में 3 भाषाएं आई और 2004 में और 4 भाषाएं, ऐसी 14 की 15, 15 की 18 और 18 की 22 भाषाएं हो गई। और ये भाषाएं भारतीय संविधान के आर्टिकल 344(1) और 351 के आधार पर शेड्यूल 8 में, जो शेड्यूल 8 है वो भाषा के लिए उसका प्रावधान किया गया है, और ये संविधान में जो आर्टिकल 2 बताए उसके अनुसार ये भाषाएं सम्मिलित होती है। लेकिन ये हमारी धम्म की जो भाषा है, धम्म देशना की जो भाषा है पाली भाषा, इसको मात्र अभी तक संविधान की अनुसूची 8 में अब तक स्थान नहीं मिला है। इसके लिए वेंदेबल भिक्षु संघ और उपासक संघ तो प्रयत्नशील है ही है, लेकिन भिक्षु संघ की उस भाषा के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है ऐसे हमें लगता है। तो उनके लिए भाषा को शेड्यूल में 8 डालने के लिए क्या प्रावधान है या क्या प्रोग्राम है, इसका भी स्पष्टीकरण हमें चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कि हम अगर समाज में काम करते हैं और समाज का नेतृत्व प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो काम करता है, जो भी मीन्स हमारे समाज का जो 4 घटक जिनको संघ कहा गया है, तो वो संघ के सामने समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन हम जिन महापुरुषों की प्रेरणा लेके हम लोग काम कर रहे हैं समाज में, तो हर एक लोगों के साथ में समस्या है, लेकिन समस्याओं को ओवरकम करना हम लोग सीख गए हैं। क्योंकि आज 70 साल हो गए, और 70 साल में हम लोग आज बोलते ना परिपक्व तो हो रहे हैं, क्योंकि 70 साल यानी कि बोलते म्हातारपणाचा दिवस आहे ना, म्हणजे तिने भगवान बाबासाहेबांनी जेव्हा धम्म दिला त्यावेळेस अगदी बालवया म्हणजे फक्त 1.25 महिन्याचे बाळ होतो। 1.25 महिन्याचा धम्म सोडून बाबासाहेब आमच्यामधनं निघून गेले। जब 1.5-2 महीने का तो जब धम्म था, बाबा साहब ने हमें दिया, उसके बाद बाबा साहब तो चले गए। उसके बाद जब आज 65 इयर्स कंप्लीट हो गए और हम लोग सेकंड जनरेशन के लोग आज मैं तो इन लोगों को सॉल्यूट करूँगी। अपना हमारी सुनीति जी को और बनते विजया मैत्री जी को कि इन्होंने बहुत अच्छी आज पैरवी करके आज जो हमारी भावनाओं को जागरूक किया और ये प्रश्न को आज लेकर सामने रखा कि ताकि ये संगठन को हम लोग हमारे कैसे हाथ-बार लगे और ये संगठन को हम लोग आज भला ही उन्होंने आज बीजारोपण किया हो, लेकिन इस बीजारोपण को हम लोग कैसा खत पानी डाल के अच्छा खत डाल के हम लोग इस बीज को हम कैसा वृक्ष बनाए। भला ही हम लोग वो फल खा नहीं पाएंगे, लेकिन ये फल को निर्माण करने के लिए हम लोग हमारे सभी लोगों के जितने लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ये लोग यहाँ से प्रण करके जाइए कि जो इन लोगों ने जो कारवा को चालू किया, इस कारवा को हम लोग बढ़ाने के लिए और तन मन धन से अभी जुट जाए।
उपासक ने पूछा है कि भिक्षु भिक्षुनी का सेंटर नहीं है, भिक्षु भिक्षुनी का कोई उपासक माने भिक्षुनी बच्चे भिक्षु बनना भिक्षुनी बनना चाहते हैं, सामनेरी बनना चाहते हैं, तो आपके बच्चे 3 महीने या 10 दिन में शीलवान बन जाएंगे, धम्म का कार्य ले लेंगे। तो फिर आपको किसने सिखाना चाहिए? बच्चे को आपने क्या देना चाहिए? गर्भ से ही बच्चे को संस्कार देना चाहिए। आप गर्भवती बाई संस्कार अपने शिशु को दोगी, वही जन्मते वही होगा। फिर छोटे से इतू से लेकर उसमें वही शब्द डालोगे तो उस पर प्रभाव होगा। 10 दिन में, चाहे 3 महीने में, चाहे 1 साल में, चाहे 12 महीने में या 6 साल में भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये परिवर्तन माने खून से ही उत्पन्न होता है, बीज से ही उत्पन्न होता है। सही बात है। जब तक ये 5 पंचशील का आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। भगवान ने भी जब 5 पंचशील दिए उपासक को दिए थे, 3 बार पूछे थे, पालन करोगे पालन करोगे पालन करोगे, तब देते थे। क्या आप 5 पंचशील नहीं सिखा सकते हो बच्चे को, तो 10 शील का पालन कहाँ करेंगे? हाँ, वैसे उपासक ने उत्तर दिया, भंते जी लोग ने शादी नहीं लगाना चाहिए, भंते जी लोग ने मरण में नहीं जाना चाहिए, भंते जी ने आशीर्वाद देना चाहिए। कहा तो भंते जी लोग आपसे ही तो उत्पन्न हुए हैं, कोई आकाश से नहीं टपके, धरती से नहीं पैदा हुए हैं, आपसे ही बने हैं। कोई अपने परिवार से त्रस्त हो जाती है, वो माता जी माने भंते जी बनती है। और कोई माने ससुराल में भी जाके माँ बाप का नहीं सुनते हैं तो ससुराल भी नहीं सुनते, वहाँ से आके भंते जी बनते हैं। कोई बीमार होता है वो भंते जी बनता है, कोई लाचार हो जाता है वो भंते जी बनता है। गुरु जो शिक्षा दिया है वो शिक्षा देता है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि घर से ही वैसे बन के आई है। उसमें क्या था? राग था, द्वेष था, तृष्णा थी। हितकार परिवार में नहीं बनी तो वो यहाँ का हितकार बनेगी? बताइए, क्या गलत बोली वो? तो वो माने वैसे बनी है, तो गुरु शिक्षा का नाता ही नहीं चल रहा है। आज अपन भिक्खुनी महापराजित का संघ दिन का कार्य मना रहे हैं। उसने 500 भिक्षुनी तैयार करके उपासिका में और संघ निभाया था। पहले किसने सिखाया था भिक्षुनी को? किसने माने शिक्षा दी? भंते जी लोगों ने 500 भंते जी भिक्षुनी को शिक्षा देने गए थे। आज उपासक कहते हैं भंते जी ने खाना नहीं बनाना चाहिए, भंते जी ने भिक्षुनी एक भंते जी को रोज खाना खिलाती थी, रोज खाना खिलाती थी और वो प्रवचन देने जाता था। क्या? और एक उपासिका ने बोली कि भंते जी 2 टाइम चारिका करते हैं। अरे उपासिका थी तो वो 10 बार खाना खाती थी, 2-3 बार खाना खाती थी, दिन में आए वो कुछ भी पेट में डालती थी, और भिक्षुनी आके परिवर्तन हो जाएगा क्या? और 10 साल 20 साल भी होंगी तो परिवर्तन नहीं होगा। 10 साल 20 साल होगी तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसको शिक्षा नहीं मिली। क्या उसको शिक्षा नहीं मिली? तो अहंकार आज भी मने गया नहीं। हितकार कहाँ से? वो हितकारी थी तो आज हम दिवस बना रहे हैं। सो समाओ बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली तो ऐसे विचार आते हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने धम्म का पालन और उसकी समझ आइदर एज ए उपासका, उपासिका, मंक, नन, कोई भी प्रकार से जो मतलब लेना चाहता हो, उसमें उसकी जिज्ञासा ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक वो अपना डेडिकेशन नहीं करेगा वो आगे नहीं आएगा विचारों से। तो हमारी जो लड़ाई चल रही है विचारों की लड़ रही है। तो मैं तो सोचता हूँ कि मतलब इस देश में इतनी जनसंख्या है, इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं और 50% महिलाएं हैं इस देश में, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी बाबा साहब के फॉलोअर हैं, उन्होंने धम्म को सीरियसली लेना चाहिए। फिर उनका विहार हो आजू बाजू का,
वस्तिका विहार हो, अपने घर में हो, सब में वो बाबा साहब के विचार, बुद्ध के विचार घर में आने चाहिए। पंचशील के विचार हम वो कैसे आ सकते हैं और कैसे मदद कर सकते हैं भिक्खुनी संघ को। अगर भिक्खुनी को भी, मतलब भिक्खुनी संघ और महिला को भी ऐसा लगना चाहिए आज के देश में कि हम भी बराबर है और हम भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। कैसा होता है, मैंने पर्सनल अनुभव देखा, मेरे घर में भी बहुत लोग सोचते हैं कि कोई बड़ा भाई एक जिम्मेदारी ले लेगा, कोई एक रिलेटिव है वो जिम्मेदारी ले लेगा। इस देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, आदमी खुद जिम्मेदारी नहीं लेता, खुद जिम्मेदारी नहीं लेगा। जैसा भगवान बुद्ध ने बताया कि अत्तदीप भवो, तो हम महिला रहे, पुरुष रहे, उपासक रहे, कोई भी रहे, जिम्मेदारी स्वयं खुद लेने की इच्छा बहुत आनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है कि हमारा संघ कैसे बढ़े, हमारा संघ कैसे बढ़े, भिक्षुणी कैसे बढ़े, भिक्षु कैसे बढ़े। हम एक बहुत अच्छी विचार लेकर के आई हूँ। भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ कहीं ज़मीन से नहीं, आसमान से नहीं गिरेंगी। ये सारे उपासक लोग बैठे हैं, इसमें का एक एक बच्चा अपने अपने घर से हमको दे दें, पढ़ाने लिखाने की सारी जिम्मेदारी रखूंगी और धर्म का काम बच्चों का सिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा संघ बैठा हुआ है, शायद सब मैरिज हैं, एक अनमैरिज, ये हमारी वकील साहब अतदीपा अनमैरिज हैं, बाकी सब मैरिज। सबके घर में पोती पोता नाती नतकुर होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सभी लोगों के घर से एक एक बच्चा निकाल लें, उसका पूरा काम पढ़ाने का करूंगी और धर्म आगे बढ़ाने का काम करूंगी। बुद्ध का सिर्फ भिक्षु ने ही पढ़ाई करना चाहिए, त्रिपिटक का ये सिर्फ भिक्षु ने है, भिक्खु या भिक्खुनी ने करना चाहिए, ये सही नहीं है। उपासक और उपासिका ने भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक उपासक उपासिका धम्म पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं कि एग्जैक्ट क्या है करके। क्योंकि मुझे भी हमेशा क्वेश्चन आता था कि मैं क्या करना चाहिए, मैं क्यों पैदा हुई हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि शादी करके कोई क्या है, एंडिंग क्या है, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ये हुआ कि बाबा साहब ने बुद्ध धम्म के पास में क्यों दिया है, क्या करना है। मैंने वो करने के लिए पहले अपने आप को ये किया और मैंने इसी साल एमए पाली किया। और एमए पाली करते समय मैंने अभी ऐसे नहीं है कि मुझे कॉलेज ने गेस्ट लेक्चर करके भी ये किया, लेकिन मुझे वो वहाँ जाके पढ़ाने के बजाय मैं ऐसे ही इसमें जाके पढ़ाना चाहूँगी कि जहाँ पे सच में अम्बेडकराइट से मैं जाऊँ, मैं बाबा साहब के सोच से मैं बुद्ध को जानूँ। क्योंकि बहुत कुछ मुझे जब त्रिपिटक का मैंने पढ़ाई किया, ऐसे कुछ ये है कि मैं समझ के पल्ले पड़ रहे हैं कि ये क्या है। अगर मैं बाबा साहब के थ्रू अगर मैं उस चीज़ को पढ़ती हूँ तो वो समझने के लिए बहुत आसानी होती है। और मैं हमेशा यही कहूँगी कि हर उपासक उपासिका ने पाली का पढ़ना जरूरी है। मैं और एक बात तो कहना चाहती हूँ, क्योंकि भिक्खुओं को परित्राण पाठ में बुलाते हैं, भिक्खुनियों को नहीं बुलाते हैं, तो ये थोड़ी असमानता है। भिक्खुनियों को बुलाना चाहिए। और जो भिक्खुनियाँ है, कई भिक्खुनियाँ प्रशिक्षित है और कई नहीं है, तो मुझे मेरा कहना है कि भिक्खुनियों को प्रशिक्षित होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रशिक्षित भिक्खुनी रहेंगी तो आगे भी वो धम्म का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से करेंगी। जैसे कि हमारी भिक्खुनी विजया मैत्र है, सुनीति है, इनको देख के ही प्रभावित हो जाते हैं अगले, वैसे ही आपको भी देख के मैंने आपका प्रभाव पड़ना चाहिए। ये जैसे उच्च शिक्षित है तो इन्हें जितनी कठिनाइयाँ नहीं आती उतनी जो प्रशिक्षित नहीं, अगर आपको कुछ सवाल पूछे उपासक ने तो आप दे नहीं पाते, लेकिन जो प्रशिक्षित है और उच्च शिक्षित है तो वो हर एक का सवाल का जवाब दे सकते हैं। हां, तर पहा बाबासाहेब रायटिंग आणि स्पीचेसमध्ये लिहितात की बुद्ध धम्माचा प्रचार करायचा आहे तर 3 गोष्टी लागतात। एक, जागतिक बौद्ध सेवा संघातर्फे एक जागतिक बौद्ध सेवा संघ, त्याच्या अंतर्गत दवाखाने असले पाहिजे। दुसरं, शाळा आणि कॉलेज असले पाहिजे। आणि तिसरं, शीलवान आणि विद्वान भिक्षू असले पाहिजे।
बाबासाहेब लिहितात, आजकालचे भिक्षू केवळ ध्यान करत राहतात. त्यांनी गावागावात नगरानगरात फिरून लोकांना धम्म समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. धम्म प्रचारासाठी झटलं पाहिजे. हम अकेले मेरी संस्था है, मैं ये संस्था से जुड़ी हुई, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो डोनेशन दे रही हूँ, मैं पैसा दे रही हूँ, नहीं, लेकिन हम सब मिलके क्या कर सकते हैं? मिलके जब एक संघ बहुत बनता है ना, तो वो संघ बहुत मजबूत होता है और वो बहुत बड़ी एक्टिविटी और धम्म को आगे ले जाने में बहुत सफल हो सकता है. तो मुझे लगता है कि इस बारे में कि संघ की भूमिका सब मिलके, या अलग अलग कोई नहीं रहेगा इसमें, सब चारों ये पिल्लर जो भी बताए हमारे भंते जी ने बताए थे, वो चारों पिल्लर मिलके हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं. मैं अभी एक एक पैनलिस्ट से दरखास्त करती हूँ कि वो अपने विचार बताए कि हमें क्या करना है. आज का जो कार्यक्रम हो रहा है भिक्खुनी संघ की निर्मिति, ये मेरे ख्याल से 21वीं शताब्दी की पहली नींव है जो भारत में जो भिक्खुनी संघ की ऐतिहासिक ये यहाँ पर एक काम शुरू हो गया है. अभी 3 दिन में जो हम यहाँ पर सुने, अच्छे विचार हमें लगे. मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ तो बैकवर्ड एरिया बहुत है, आपको सबको मालूम है. दोस्तों, अब मुझे किसी ने बताया कि भिक्खुनियाँ अलग अलग कुटी बांध के रहती है. मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ. अलग अलग कुटिया बांधने से समस्या दूर हो रही है क्या कि हुई है क्या? मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, बाद में हमारे जो ये है उपासक उपासिका उनके भी बारे में मैं बोलता हूँ. अब बुद्ध के समय में भी ऐसा हो गया कि बुद्ध ने बोले कि आप ही एक दूसरे के दोस्त है, आप ही एक दूसरे के साथी है. बीमारियों में या किसी ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप एक दूसरे का साथी बनकर आप एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं. आप कुटिया बांधने से, अब ये भी कुटिया कहाँ है आपकी, गांव के आसपास नहीं है, गांव के बहुत दूर है, सीमा के भी दूर है, किसी किसी जंगल में भी है. तो ये कुटिया या आपका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मुझे नहीं लगता कि, पर्सनली मेरा मैं ओपिनियन बता रहा हूँ, वहाँ पे रह के आपका धर्म प्रचार हो जाएगा करके. अब मैं बात करती हूँ भिक्खु संघ, भिक्खुड़ी संघ और उपासक और उपासिका संघ की, कि हम दोनों मिलकर कैसे काम करें. भिक्खु संघ का जो काम है, उनको अपने काम में महारत हासिल होनी चाहिए, वो स्किलफुल होने चाहिए, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने होने वाले चाहिए, उनके अंदर इतना तेज होना चाहिए कि देखने वाले व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो कि ये व्यक्ति कौन जा रहा है या ये भिक्खुड़ी कौन है, ये कहाँ से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया. क्योंकि ऐसी कहानियां हमने बुद्ध के धम्म में पढ़ी हैं. उनका धम्म ऐसे ही पढ़ा. आपके आचरण से, आपकी वाणी से करुणा और दया झलकनी चाहिए. आपके अंदर अनुशासन कूट कूट करके भरा होना चाहिए, क्योंकि यही धम्म को आकर्षित करने वाली चीजें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए. मैं फिर थोड़ी सी बात उपासिकाओं के लिए आती हूँ कि हम उपासिकाएं क्या कर सकते हैं. पहली बात, जैसे यहाँ बहुत बात आई थी कि जब भिक्खुड़ी संघ ही नहीं है तो हम भिक्खुड़ी संघ का काम कैसे बताएं. तो पहले भिक्खुड़ी संघ आपको भी बनाना है. उसी प्रकार उपासिका संघ भी नहीं है और उपासक संघ भी नहीं है. मैं नहीं जानती कि नागपुर में है या नहीं. मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ. मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आगरा में कहीं भी ना उपासक संघ है और ना उपासिका संघ है. तो हमारा पहला कर्तव्य यही बनता है कि मैं उपासक संघ नहीं बना सकती, मैं उपासिका संघ भी नहीं बना सकती, क्योंकि अगर संघ कोई बनवा सकता है तो वो भिक्खुड़ी बना सकती हैं या भिक्खु बना सकते हैं. हम बार बार कहते हैं कि हमारे पास प्रशिक्षित भिक्षु संघ नहीं है, हमारे पास प्रशिक्षित भिक्षुनियों का संघ नहीं है, इन्हें कुछ आता नहीं है. तो यह जिम्मेदारी हम उपासकों की है. हमने क्या निर्माण करके दिए हैं. भिक्षु या भिक्षुनियाँ ना तो आसमान से टपकी है और ना ही धरती से उगी है. ये आई है तो समाज से आई है. जैसा समाज होगा वैसा ही भिक्षुनियों का और भिक्षु का संघ होगा. और यह जिम्मेदारी हम उपासकों की है. हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, ये हर एक का कर्तव्य होता है.
मैं यहाँ मैं करने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन जब भी धम्म का काम होता है, जब भी धम्म के बारे में या सामाजिक कार्य होता है, हमें भी कोई निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती, हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी जरूर उठाते हैं। और सेमिनरी बनने के लिए मेरी वैसे बात तो भंते जी से हमेशा होती रहती है, मैं पूरा सहकार्य, मैं तो कमाती कुछ नहीं हूँ लेकिन निर्माण जरूर करती हूँ। मैं कमाती कुछ नहीं हूँ लेकिन निर्माण जरूर करती हूँ, इतना तो मैंने खुद को बनाया है और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगी। भंते जी विमल कीर्ति गुणश्री भंते जी सभी आप जानते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने सेमिनरी यहाँ शुरू की थी और उन्होंने बच्चों को अच्छी तरह से, श्रामणेर लोगों को ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी तरह से दी, उनका काम भी अच्छा चल रहा था। लेकिन दुख की बात, दुख के साथ मैं ये कहूँगी कि उपासक वर्ग ने उन्हें सहयोग नहीं दिया। ये बहुत ही दुख की बात, दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद ऐसा ना हो, उस बीते हुए पल फिर से दोबारा ना आए, ऐसे में अपेक्षा नहीं, हम सब मिलके समन्वय करेंगे आपस में और मुझे लगता है कि एक सेमिनरी जरूर होगी। जो बातें बहुत पहले यहाँ होनी चाहिए थी वो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में धम्म हम लोगों को दिया और आज नागपुर में उसी दीक्षा भूमि पर हम ये पहला भिक्खुणी जो संघा दिवस है वो मना रहे हैं। हालांकि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो किसी को करनी होती है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं भंते विजय मैत्री जी और भंते सुनीति जी कि आपने इसकी पहल की। और सारी भिक्खुणियाँ जो इस शिविर में इस समारोह में उपस्थित हुई है, आप सब भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। चूँकि संघ के मायने बहुत बड़े होते हैं। एक शब्द आया था व्यवस्था। व्यवस्था एक शब्द नहीं, बहुत बड़ा, इसके बहुत बड़े मायने हैं इसके। व्यवस्था से व्यवस्थित और व्यवस्था करने की जो बातें हैं उन पर हम यदि बहुत गहराई से चिंतन करें तो हमें लगता है कि हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हमारे पास क्यों आज तक भिक्खुणी प्रशिक्षण केंद्र नहीं है? मैं तो उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। मुझे लगता है कि सहारनपुर में हमारी भिक्खुणी धमनंदा जी है। जब मुझे ये एक विहार में रहती थी, वहाँ विहार से इनको निकाल दिया गया, चूँकि वो विहार किसी पर्सनल व्यक्ति ने मतलब अच्छे कार्य के लिए अच्छी सोच के साथ बनाया था, लेकिन उसके परिवार वालों ने उस पर कब्जा कर लिया। और भिक्खुणी जी वहाँ पर रही, काफ़ी साफ सफाई भी रखती थी और लोगों को धम्म का उपदेश भी देती थी। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने अपना आधिपत्य जमाते हुए उन्होंने सोचा कि कहीं भिक्खुणी इस पर बुद्ध विहार पर कब्जा ना कर लें, तो भिक्खुणी धमनंदा जी को वहाँ से आउट कर दिया। तो सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि हमारा उपासक जो मैं हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है भिक्खु संघ या भिक्खुनी संघ के साथ में हमारा समन्वय कैसा हो। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उपासक और उपासिका को धम्म समझना चाहिए। सर्वप्रथम कि धम्म क्या है। धम्म घर में चलाना चाहिए, समाज में चलाना चाहिए कि राष्ट्र में चलाना चाहिए। हम यहाँ से फिलहाल बहुत दूर है। हमारे भारत देश में, या मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूँ तो वहाँ पे धम्म सिर्फ कागज पे लिखा हुआ है, आचरण में नहीं है। ये हमारी सबसे पहली दुविधा है। दूसरा जो है कि धम्म समझना है, तो यहाँ पे भिक्खुनी संघ ने भी कहा कि सिर्फ पंचशील का ही पालन करना चाहिए, जो हमसे नहीं हो पा रहा है। हमें रोज़ सुबह पंचशील लेना चाहिए ताकि हम अपना जीवन पंचशील के आधारित तत्व मूल्यों पर जीवन व्यतीत करें या उस दिन की व्यतीत करें। लेकिन हम जो पंचशील है हम लोग लेते नहीं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे भिक्खु बुद्धशिला थी जो बहुत थी, वो दीक्षा भूमि पे हारते, तो मैं और मेरे वाइफ ने उनको पिकअप किया। तो कुछ बच्चे आ गए कि उनके साथ भिक्खुनी संघ के साथ उनको फ़ोटो खींचाना था। मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको पंचशील आता है तो आप फ़ोटो निकालो। 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड की बच्ची आती हैं, उनको पंचशील नहीं आता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भिक्खु संघ, सोसाइटी या फैमिली? फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फैमिली उपासक नहीं है, उपासिका नहीं है। तो हर एक फैमिली में उपासक उपासिका होनी चाहिए।
इसका परम कर्तव्य भिक्खुनी संघ ने करना चाहिए और समाज के हर व्यक्ति ने करना चाहिए जहाँ पे वो लोग वहाँ पे बैठते हैं। मैडम आए थे, हज़ारे मैम और बाकी काफ़ी लोगों ने जैसे कहा कि वो अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, करना चाहते हैं। एज अ कॉमन पीपल, नॉर्मल जो लोग हैं, बाकी लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इन टर्म्स ऑफ लैंड नहीं रह सकता है, पैसा नहीं रह सकता है। आप कुछ आपके तरफ से आपका एक उत्तरदायित्व है, एक सामाजिक जवाबदारी जो होती है भिक्खु संघ के लिए, वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके आसपास के जो विहार है उनमें जाके आपके यहाँ के जो भिक्खु भिक्खुनी हैं उनसे मिल सकते हैं, उनसे उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको समझ सकते हैं। जैसे अतुल दादा जी ने कहा, अतुल दादा जामगढ़े जी ने की, वो अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं हर एक चीज़ में, कि वो जैसे कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके तरफ से जितना हो सकता है वो करते हैं। सो एक उपासक ने भी यही ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपने तरफ से भिक्खु संघ के लिए, भिक्खुनी संघ के लिए क्या हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं। जैसे 2 साल पहले या लास्ट ईयर जो कोविड का बहुत बड़ा इशू हुआ था, जिसमें भिक्खु संघ एकदम आइसोलेट हो गया था, लोग उनके तरफ पहुंच नहीं पा रहे थे, तो हमारे कुछ टीम ने, जैसे या फिर अतुल दादा की जो टीम थी, उन्होंने मिलके सभी भिक्खुनियों को मेडिसिन, फूड, ये सारी चीज़ें अलॉट की। एक नॉर्मल उपासक भी ये चीज़ें वो टाइम पे कर सकता था, और ऐसी अगर कुछ चीज़ें या आपदा आती है तो उपासक ने ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पण मला तर असं वाटते, आपणही एक महिलाच आहो, महिलांनी महिलाचा कधीही द्वेष करू नये, बुद्ध असे सांगतात। कोणीही कोणाचा द्वेष करू नये, इथून सुरुवात धम्माची होते। पण मात्र आपण त्या गोष्टीला भुलून जात असतो, भिक्खूनं असं करू नये, भिक्खुनीनं तसं करू नये वगैरे। आता ऐकलं, संध्याकाळी ते जेवण घेतात वगैरे। आपण काही दिवसासाठी आपल्या मुलाबाला सोडायचं आहे, भिक्खू बनायचं आहे, अनुभव घ्यायचा आहे। दुसऱ्याकडे पाहून अनुभव शिकल्या जात नाही, स्वतः स्वयं त्याचा अनुभव घ्यावा लागते। पाण्यात आला मासा झोप घेई कसा, जेव्हा त्याच्या वंशी जाईन तेव्हा कळेल। दुसऱ्याकडे पाहून मात्र शिकल्या जात नाही, स्वतः शिकावं लागतं। आणि आपण फक्त तुम्ही असं नाही करायला पाहिजे, तुम्ही तसं नाही करायला पाहिजे, मात्र आपण काय करतो संघासाठी, त्याही भिक्खुनी आपल्यामधून निघून गेलेल्या आहेत, तुमच्यामधूनच त्या भिक्खुनी झाल्या आहेत। भिक्खू असो या भिक्खुनी असो, परिवारातूनच निघालेले आहेत। परिवार कसा असेल, पहिले आपल्या परिवाराकडे आपल्याला ध्यान द्यायचं आहे। त्या परिवारातूनच भिक्खू येतो, त्याच परिवारातून भिक्खुनी येतो। भिक्खुनी काही आकाशातून, जमिनीतून बाहेर झाडाले फळं होय गेला आणि तोडलं। त्यांच्यापासून एवढ्या उमेदा जेव्हा आपण करतो, पहिले आपले कर्तव्य काय आहे ते पहिले आपण समजून घेतले पाहिजे। उपस्थित भिक्खुनी संघ को मेरा त्रिवार वंदन है, और सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत सारी बातें आ चुकी है, आज हम अपने अंतिम पड़ाव पर है अपने कार्यक्रम के, और कुछ बातें बड़ी अच्छी निकल कर आई है, क्योंकि जिन्होंने जो जो अनुभव किया है वो बातें यहाँ पर आई है। सबके अनुभव अलग अलग है, उपासकों के अनुभव अलग है और भिक्खुनियों के भी अनुभव अलग है, और ये अपनी अपने पक्ष रख रहे हैं। कहीं पर ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ कि केवल उपासकों का दोष है या केवल भिक्खुनियों का दोष है, ऐसा मैं कहीं नहीं देख रही हूँ। दोनों में कहीं न कहीं खामियां हैं और कहीं न कहीं स्ट्रांगनेस भी है, मजबूती भी है। और इसीलिए 1998 से ये भिक्खुनी संघ अब तक चला आ रहा है। सिर्फ ये है कि अभी तक संगठित रूप में नहीं थे, लेकिन मैं देखती हूँ, संघ की बात हो रही है,
लेकिन मैंने जैसे अपने किताब में लिखा है, जो मैंने रिसर्च किया है, कि हमारी जो वरिष्ठ भिक्खुनियाँ रही है, जो सबसे पहले 98 में हुई, उनमें से अभी यहाँ पर कुछ उपस्थित है, इन्होंने अपने अपने लेवल पर अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे संघ निर्माण किए हैं और कार्य कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके साथ में उपासिकाएं नहीं हैं, उनके साथ में उपासक उपासिकाएं भी काम कर रही है, इसीलिए वो चल रहा है। बस एक नेशनल लेवल पर एक होने की बात थी नेशनल लेवल पर एक होने की, नहीं क्या? तो और उपासक उपासिकाएं सभी को मदद कर रहे हैं, उनको जो समझ में आ रहा है मदद कर रहे हैं, भिक्खु भिक्खुनियों के मार्गदर्शन में मदद कर रहे हैं, लेकिन उनका भी संघ कहीं नहीं है, संगठित नहीं है। बुद्ध ने ही ये 4 संघ बनाए थे, संकल्पना की थी और उन्होंने उनको ट्रेन भी किया था। लेकिन बीच में जो लंबी गैप आई है कुछ सालों की, जिसमें धम्म का ह्रास हुआ है, बुद्धिज़्म को नष्ट किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं वो जो पुराना सिस्टम था, जहाँ बुद्ध ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को सिखाया था कि भिक्खु भिक्खुनियों को कैसे काम करना है, उपासक उपासिकों को कैसे काम करना है, वो कहीं ना कहीं लुप्त होते चला गया है। और आज हम फिर से उसका पुनरुत्थान कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि मूल उद्देश्य धम्म का प्रचार प्रसार करना, और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए ये चारों संघ बराबर है। इसमें से चारों में से एक भी लंगड़ा हो जाए तो धम्म का प्रचार प्रसार बराबर नहीं होगा। हमको चारों संघों को मजबूत पिलर की तरह खड़ा करना है और उसके ऊपर धम्म की इमारत खड़ी रहेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। पूरे भिक्खुनी संघ को मेरा नमन। बहुत सारे वक्ताओं ने इस पर अपने अपने विचार रखे हैं। हमारे उपस्थित लोगों में से भी, उपासक उपासिकाओं में से, भिक्खुनियों में से भी अपने अपने विचार यहाँ पर आए हैं और बहुत सारी बातें तो क्लियर हो गई है कि एक्चुअल में करना क्या है। मैत्रेय ने जैसे कहा कि हमको उपासक उपासिका संघ ये बनाने की ज़रूरत है, राज्य स्तर पर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन मोटिव हमारा, उद्देश्य हमारा राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए। एनीवे, शुरुआत हमें ग्राउंड लेवल से ही करनी पड़ती है। मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर भिक्खुनी संघ को मजबूत करना है तो सबसे पहले उसे प्रशिक्षित करना होगा। हम ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में अगर विद्यार्थी नहीं है तो ट्रेनिंग सेंटर किसी काम का नहीं। ये एक तो ये जैसे एक एक व्यक्ति से आया कि हम जगह देंगे, कोई बोल रहा है कि हम दान देंगे, यही अगर हम कमेटी बनाकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता है, ये मुझे कहना है। जैसे हॉस्पिटल की बात की है और स्कूल की बात की है, तो धम्म के लिए धम्म को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की ज़रूरत है, चाहे वो चीवर में हो, उनका होना चाहिए, क्योंकि वो मार्गदर्शक है, वो टीचर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आ रहा है। दूसरा कि बीच में एक और पॉइंट आया था, इसलिए मैं वो बीच में ले रही हूँ, हमारे विषय से संबंधित नहीं है, फिर भी वो पॉइंट मैं लेना चाह रही हूँ ताकि भूल ना चाहूँ। एक पॉइंट उठ रहा था कि यहाँ पे क्या भिक्खुनी संघ भेदभाव कर रहा है और भिक्खुओं को नहीं बुला रहा है, ये मुझे लेना था। एक्चुअल में सबको मालूम नहीं होता है कि क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है। यहाँ पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नागपुर के टीम को, जिन लोगों ने एकत्रित आकर हमको सहयोग किया, और इस पूरे उपासक उपासिका टीम और हमारे भिक्खुनी की टीम ने मिलकर जिस तरह से इसका ऑर्गेनाइज किया इस कार्यक्रम को, तो इसमें ये बात भी आई है कि हमको भिक्खुओं को बुलाना है। और सबसे बड़ा प्रूफ मेरे पास में है कि हमने भिक्खु को बुलाने के लिए, दीक्षा भूमि के भिक्खु को बुलाने के लिए उनको इन्विटेशन लेटर दिया है, लेकिन वो यहाँ आए नहीं हैं। इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल दो कि भिक्खुनियाँ भिक्खुओं के साथ भेदभाव करती है।
द्वेष उनके मन में है, इसलिए वो हमको बुलाते हैं और पीछे बिठाते हैं, लेकिन बोलने का मौका नहीं देते। लेकिन हमने यहाँ भिक्खू को और सामने को पहले दिन बोलने का मौका दिया, इसके साक्षीदार आप सब हैं। आमंत्रित किया था बोलने के लिए। इनॉग्रेशन सेशन में 2 भिक्खू यहाँ पर थे। एक भिक्खू भोपाल से बुलाए गए थे जो नहीं आए। एक भिक्खू जिनको मैंने फ़ोन करके बुलाए वो बोले हमारा दूसरा कार्यक्रम है। एक भिक्खू का फ़ोन नहीं लगा, यानी और हम सभी संघ को नहीं बुलाना चाहते थे। हम जो भिक्खू भिक्खुनी के साथ कार्य करना चाहते उसी को हम बुलाना चाहते थे। फिर भी उनमें से भी भिक्खू नहीं आए, तो ये दोषारोपण भिक्खुनी संघ पर गलत है, ऑर्गेनाइजेशन पर करना गलत है कि हमने उनको बुलाया नहीं है। उल्टा ये बात हुई है कि यहाँ पर दीक्षा भूमि पर भिक्खुनियों को टॉर्चर किया गया कि आपका कार्यक्रम कैसे होता है हम देखते हैं, आपको हॉल नहीं मिलने वाला है, हम आपको करने नहीं देंगे। इस तरह के भिक्खुनियों को धमकियां दे देकर टॉर्चर किया गया। और ये इसी प्रोग्राम में नहीं हुआ, तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में ऐसे हुआ कि यहाँ तक कि नांदेड़ में एक भिक्खु ने पूरे उपासक उपासिका संघ को कहा कि भिक्खुनियाँ चारिका के लिए भोजन की चारिका के लिए आएगी तो उन्हें भोजन नहीं देना है। यहाँ तक कि कारस्थान होते हैं। क्या सच में ये भिक्खु कहलाने लायक है? मैं ये ओपनली बोल रही हूँ, मेरा विरोध होता है, लेकिन हम इंसानियत चाहते हैं, उनसे सहायता चाहते हैं। एक भिक्खु हमारे लिए गुरु के स्थान पर है, क्योंकि उनको बुद्ध ने पहले चिवर दिया है, वो संघ पहले बना है ना। तो हमको मिल रहा है उनसे, हमें उनसे चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। जब तक हम लोग धर्म का सील नहीं समझेंगे, बाबा साहेब का 22 प्रतिज्ञा जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक मेरा संघ आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि कथनी और करनी एक करनी पड़ेगी, 2 नाव पर पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे। मैं जानती हूँ कि लोग मीटिंग में ज़रूर आते हैं, अपना नाम दर्ज जरूर कराएंगे, लेकिन घर में वही 26 करोड़ देवी देवता में लगे रहते हैं। तो मैं आप लोग से यही अनुरोध करती हूँ कि आप लोग वैसा ना करें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा पटना में बुद्ध विहार है, हमारे भांते जी करुणाकृति जी ने ही बनवाया है, लेकिन वो बार बार मुझे प्रेरित करते रहते थे कि तुम कब बुद्ध विहार में दान दोगी। लेकिन संजोग बस जिस दिन मैं 6 दिसंबर को 13 में अनाउंसमेंट की मैं बुद्ध विहार को 1 लाख रुपया दान दूंगी, और उसके बाद 14 फरवरी को उनका मृत्यु हो गया। खैर वो तो बात बीत गई, लेकिन मैं वो उपाध्यक्ष थे, मैं पटना बुद्ध विहार की उपाध्यक्ष हूँ, और वहाँ बार बार हर महीने मीटिंग की जाती थी, लेकिन लोग कहते थे कि बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए। बार बार मैं यही सोचूं कि भाई हर लोग कहता है, कुछ करता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है। मैं पहला शख्स हूँ, वहीं तुरंत 25,000 रुपया मैं घोषणा की कि मेरे घर पर आइए और आप ले जाइए, और काम शुरू किए। उसके बाद से शुरू हुआ, और आज बुद्ध विहार जब भी पटना आप लोग आएंगे, पटना में बुद्ध विहार गौतम बुद्ध विहार के नाम से प्रचलित है।